Assalamu alaikum, everyone. This is me, Sarah Iqbal Khan from the Office of Corporate Linkages and Placements. Assalamu alaikum, Hasnain. Hope you are safe, doing good. Today's session is basically about the high potential leak, which under the vision of our President, UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad, we are trying to build to launch our stars of UMT and to launch them as marketable graduates in the industry as per the specific requirements of that particular organization. And for this thing, we have initiated a mentor-mentee matchmaking, whereby we bring in the best of the experts from the industry and then, attach them to the mix. So prior diving into the session, first I would like to give a brief introduction about Hasnain. Hasnain basically is working as a talent acquisition specialist at Arbisoft, which is one of the leading IT firms of Pakistan. And Hasnain has done his bachelor's in human resource from University of the Punjab and has over 3 years plus experience in the development sector. He holds expertise in people relations, recruitment, operations, and employer branding. Hasnain has profound understanding of resume writing skills, along with in-depth strategic know-how of effective interviewing skills. He has interviewed over 500 plus candidates, and he's extremely passionate about helping individuals identify their skills, potential, and strengths for, professional and personal growth. So welcome on board, Hasnain, and we are very grateful that you managed to create time for such a noble cause of youth development. And I have shared the resumes of all of these 6 stars that we have shortlisted for the batch 1, including Nisam, Memuna, Ikra, Kinza, and Rehan with you. And I have also shared the link of the company for which we are pitching them, which is STS Global, the renewable energy experts. So now you can formally initiate the session and keep it interactive, engaging as you like. And I hope you will love to take their queries and help them out in whatever capacity you can. Thank you. Earlier, I mean, from expectations हम set clear कर लेते हैं, because I think this is not just an just we can speak for an hour and you guys just could go. But this is something serious. This mentor-mentee relation. I think from the university would be some pointers you guys for the okay. I think Assalamualaikum, sir. We can't hear you properly. Assalamualaikum, sir. Sir, can you hear me? Sir, we are unable to hear you. There is so much interruption in your voice. So you are still not audible. Your voice is continuously breaking.
आपको मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. अच्छा, अब बेहतर है, राइट? Yes. ओके, ग्रेट। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि ये कोई ट्रेनिंग सेशन या ओरिएंटेशन सेशन उस तरह से नहीं है जिसमें आई विल स्पीक फॉर एन आवर और आप यू गाइस कैन टेक अवे पॉइंटर्स जो आपको करेंगे। इट्स मच मोर देन दैट। एक्चुअली आप इट्स अ बिट मोर सीरियस, जिसमें एक्सपेक्टेशन आपकी यूनिवर्सिटी की है कि आई नीड टू हेल्प यू गाइस टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यूज जो कि आपके आने वाले हैं। सो उसके लिए दे कुड बी टू वेज। या तो मैं शुरू में आपको सारा बताऊं कि सीवी कैसे बनानी चाहिए या स्टफ लाइक दैट, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर पिच, एलिवेटर पिच जिसे कहते हैं, आप इंट्रोडक्शन जिसे कह रहे हैं। और वी कुड आल्सो टॉक अबाउट, we could start with some of the questions that you guys have. How can I improve my CV? How can I improve my elevator pitch? Yeah, how could I make an impact during the interview? So if you want to do that way, that is your call as well, because it's a mentor-mentee relationship जिसमें सारा कुछ mentors नहीं आ रहा होगा। So जैसे आप लोग भी comfortable feel कर रहे होगे, so we're gonna do that way as well. So आप में से कोई suggestions कोई देना चाहे, if you want to talk about it, तो please मुझे बताएं कि how would you like to take it? Sir, I would like to give you a suggestion. Okay, please. Sir, I think it's better in the short time period that you tell us about one by one that you should improve this thing in your CV and you should improve that thing in your CV. चलो, make sense ठीक है। अच्छा, सायरा कह रही हैं कि आप टाइप कर लें अपने क्वेश्चन, so you guys can do that as well. Okay, Ikra Zahid. Okay, let's start with Ikra CV then. Should I share my screen as well with you guys? That would be better, right? Okay, sir. Actually, I don't think I'd be able to share the screen. अगर शायद कि आपके पास तो सीवी होंगे सबके, if you could इकरा की अगर सीवी अगर आप मुझे दिखाना चाहें यहाँ पे स्क्रीन पे, so that हम देख लें सारे इकट्ठे बैठ के कि क्या मसला है, यहाँ पे क्या चीजें हैं that we need to improve. Then I have given you the access to share the screen, or you can share the screen. Okay, that would be better. Okay guys, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yeah, sir, we can see. Okay, great. अच्छा, so let's start with Ikra Zahid. अच्छा, इकरा का जो immediately जो मेरी नजर आपकी सीवी पे जाती है ना, pretty honest with you, थोड़ी सी boring है in terms of like, अब Sir, it's your not voice has so necessary. much interruption. It's About clear now, in this is it in the better? meanwhile. Yeah, it's better now. Okay, ठीक है। अच्छा, तो इकरा उसमें सबसे पहली चीज तो आप ये करेंगे, आपने जो आप we would probably have to change your
टेम्पलेट एज वेल। टेम्पलेट से मेरी बात ओवरऑल थोड़ा सा रिवैम्प करने की जरूरत है हमें सी आपको। लाइक हमें बॉर्डर्स पे लाइंस वाली सीवी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ना आई विल शेयर अ सैंपल ऑफ सीवी विद यू। तो होता ये है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की या कोई भी इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर इसमें इंजीनियर्स की सीवी और जो बिजनेस के स्टूडेंट्स की सीवीज होती है या सोशल साइंस के स्टूडेंट की सीवी होती है उसमें थोड़े से फर्क होते हैं। ठीक है। अब Okay. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से अच्छा अगर आप यहाँ पे कोई एमफिल वगैरह या कोई और चीज कर रहे हो तो शायद ये तरीका would have been acceptable, but now that you're doing your mechanical engineering or if you want to go in this field, so हम इसका थोड़ा टेम्पलेट चेंज कर लेंगे एंड आई विल मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस भी है सो आई विल शेयर अ वेरी गुड सीवी टेम्पलेट विद यू जिसमें हम आपकी फिर सीवी रिडिजाइन कर लेंगे। अब आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो राइट Yes, 2020 I में have. एंड यू हैव बीन Yes. लुकिंग फॉर जॉब्स। कोई अभी Yes. तक एक्सपीरियंस हुआ है आपका वर्क एक्सपीरियंस? नो सर, बस एक ठीक है इंटर्नशिप थी, वो मैंने की थी। ठीक है आपका इनके अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है सो वी कैन कट डाउन योर पेज लेंथ फ्रॉम 2 to 1। ठीक है हम Okay. आपका 1 पेज पे ले आएंगे जो मैं आपको टेम्पलेट दूंगा वी विल मेक इट इन 1 पेज। ठीक है जी। Okay, sir. अच्छा उसके बाद हम अगर अब बात करें कंटेंट पे आ जाते हैं। टेम्पलेट तो हम डिजाइन कर लेंगे हम 1 पेज पे भी ले आएंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। नाम आ गया बीच में आपका एड्रेस आपने पूरा नहीं लिखा इट्स फाइन बिल्कुल ठीक है हमें पता लगे कि आप लाहौर में रहते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज कि आपका ईमेल एड्रेस फोन नंबर और नंबर 3 आपका लिंक्डइन हम ऐड करवाएंगे इसमें। आपका लिंक्डइन का पेज है? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। सो अब लिंक्डइन का पेज का यहाँ पे लिंक डालने से पहले व्हाट वी विल डू इज इसके आपका लिंक्डइन का पेज थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे। वी नीड टू इम्प्रूव योर पेज। आपकी ऑफिशियल पिक्चर होनी चाहिए वहाँ पे, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट एक अच्छी वहाँ पे होनी चाहिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसमें क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए। ठीक है थोड़ा बहुत अगर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो विल पुट इन दैट। ये नहीं कि उसको अपडेट करना है हमने, ये ना लगे कि बहुत पुराना 3 साल पहले बनाया था तो आप वही लेके चल रहे हो। सो वील प्रॉब्ली रिवैम्प द एंटायर लिंक्डइन पेज पहले and then we'll put a link in your resume as well. Okay. Let's talk about your personal statement then. Being a highly motivated mechanical engineer who is dedicated to maintain high quality standard in my academic career, I am keen to achieve significant research development. I would like to enhance my academic knowledge as well as develop my skills and add a significant value to the organization I work for. Achha, so you never end your sentences with prepositions like for के बाद आप sentence end नहीं कर सकते. That's incorrect English. तो वो तो English wise गलती है. I describe myself as a determined, hardworking, and passionate individual looking to join an organization where my research experience can grow. अच्छा. So, what do you think? Do you think it's fine now? ये ठीक है? Is it मतलब resonating your personality? आपका actual में जो what do you want to achieve ये वो resonate कर रहा है? Yes, sir. अच्छा ठीक है अब हम करेंगे क्या we need to work on your personal statement. This is not fine. This is not a good impactful personal statement. ये आपका every run of a mill एक personal statement लग रहा है बल्कि I to be honest as a recruiter probably मैं इतना time ना लगाऊं ये देखने पे to be honest with you. So we'll keep it short. 5 लाइनें बहुत ज्यादा हैं. So we will cut down to 3 lines. ठीक है? And this is exactly why इन चीजों की वजह से आपकी जो CV है वो 2 पेजेस पे भी जा रहा है. So ये तो हम आपका पर्सनल स्टेटमेंट पे बिजली रखेगा. आप मुझे 3 लाइनों पे एक जरा अच्छा सा सैंपल लिख के भेजिएगा. सायरा हैज माय ईमेल एड्रेस तो आप लोग मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं अपनी एडिट करने के बाद CV एंड देन आई कैन एडिटेबल वर्जन्स भेजिएगा मुझे ताकि मैं उनको अगर थोड़ा बहुत अगर मुझे ठीक करना है तो आई डू दैट. Okay, sir. So we need you need to Ikra work on your personal statement. इसको थोड़ा सा trim कीजिए 3 lines और you need to make a little bit more impactful. You have talked about research experience. Let's put another word कोई और actionable words डाल दें इसमें. ठीक है actionable words का आपको कुछ पता है कि what do I mean by actionable words? No, sir.
ठीक है, चलें, वी विल टॉक अबाउट दैट। आप गूगल, मैं आपको एक आई विल शेयर अ पिक्चर, इसमें आपके साथ में शेयर कर लूंगा। उसमें एक्शनेबल वर्ड्स होते हैं कि जो नॉर्मल वर्ड्स से थोड़े से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जिससे आपका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, वो जो कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी लैंग्वेज, उनके जार्गन से करीब करीब होता है। जो जो वो ये वाली लैंग्वेज है that a recruiter or line manager would understand. वो actionable words होने चाहिए, right? Will make it better. आप Okay. एक ट्राई और कर लीजिए स्टेटमेंट की, trim it to 3 lines. अगर नहीं कुछ हुआ, so I'll help you out with that. मुझे आप अपनी editable version CV फाइनल अपनी भेज दीजिएगा, and then we will sort it out. अच्छा, now let's Okay, talk sir. about your education. ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर पाकिस्तान, लिख दिया आपने, ग्रेजुएशन मॉडल स्टेशन, ठीक है जी। अच्छा, आपने जो ये डिप्लोमास अपने 2 लिखे हैं ना, सो वी डोंट नीड दिस हियर, ठीक है? आपके एजुकेशन में Okay. ये नहीं आएंगे, ठीक है? और हम ऐसा ठीक है। करेंगे कि आप डू यू वांट टू मेंशन योर स्कूल लेवल यहाँ पर? Sir, if it's not necessary, I'll omit that. So what we'll do is कि हम आपकी शुरू से शुरू करते हैं। आपने दोनों डिसर्टेशंस यहाँ पे जो लिखी हैं आपने, उनको बेशक रहने दें और मॉड्यूल्स को हटा दें बेशक, ठीक है? और डिसर्टेशन कोई एक लिखते हैं जो आपको, विच यू आर बेटर प्राउड ऑफ, यार ये मैंने ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट काम किया था। तो इन 2 डिसर्टेशंस में एक रहने दें। ग्रेजुएटिंग, अब देखें आपने पहले लिखा हुआ है कि आप जून 2020 में खत्म होना आपका ग्रेजुएशन, राइट? लेकिन आप Yes. पहली लाइन में लिख रहे हो ग्रेजुएटिंग विद, वो सेंस नहीं बन रहा। फॉर इंस्टेंस ग्रेजुएटेड आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि पास्ट हो गया ना, वी आर इन जी sir. 2021, तो आपको इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। ग्रेजुएटेड विद, ऐसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ग्रेजुएटेड विद पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बेहतर वुड बी कि हम जो है आपका आगे CGPA मेंशन कर दें, सिर्फ दैट्स इट। हमें आउट ऑफ बताने की भी जरूरत नहीं है या कुछ नहीं। और आप अपने, इफ यू आर प्राउड ऑफ आपका डिसर्टेशन की जगह, हम नीचे बाद में ले आएंगे, ठीक है? सो विल ओमिट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, आपके वर्क एजुकेशन में। हम ग्रेजुएटिंग Okay. से लेकर डिसर्टेशन 2 तक हम सब हटा देंगे। अब होगा ये कि आप, और इनमें चेंजेस ये करेंगे कि यूनिवर्सिटी आपकी नीचे आ जाएगी। पहले आप बताएंगे अपनी डिग्री के बारे में, ठीक है? Okay, sir. आपकी First, डिग्री I will पहले discuss या about degree. जी, आप पहले अपना डिग्री मेंशन करें और नीचे यूएनटी, यानी कि आपने बस इनको चेंज कर देना है। जो चीजें आपने बोल्ड वगैरह रखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, वो आप बैचलर का कर लीजिएगा, और जो नीचे रखा हुआ है आपने, वो यूनिवर्सिटी का कर लीजिएगा, ठीक है? Okay. और आगे लाहौर पाकिस्तान की जगह अपना CGPA बता दीजिएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है? Okay. उसके बाद हम आपके जो दोनों डिप्लोमास हैं, इनको यहाँ से निकाल के आपका FSC आपने जो प्री अपने कॉलेज का बताया है वो बता देंगे, और आपका स्कूल लेवल का बता देंगे। एंड सेम गोस फॉर देम, पहले आपकी डिग्री आ जाएगी और फिर आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा, राइट? Okay. Okay. तो हम इसमें काफी आपकी स्पेस यहाँ पे हम बचा लेंगे। आप एजुकेशन के हवाले से क्लैरिटी होगी, Yes, sir. ठीक है? हम कॉलेज में आपका ना डिवीजन लिखेंगे, हमें वी डोंट नीड दैट, ठीक है? We don't Okay. need to mention that. Yeah. अच्छा, अब वर्क एक्सपीरियंस में आपने ये कैन यू नेम द कंपनी? मेकिस्तान। Pakistan. ओके, अब उसमें आपने क्या करना है कि आप पहले लिखोगे, मेकिस्तान से पहले लिखोगे आप जिस डिपार्टमेंट में इंटर्न थे, इंटर्न इन सर्टेन सर्टेन डिपार्टमेंट, या जैसे मैं, अगर जैसे HR का इंटर्न होता है ना, वो लिखता है HR इंटर्न, दैट्स इट। पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, पूरी कहानी नहीं लिखनी कि आई वाज एन इंटर्न इन द HR डिपार्टमेंट, जस्ट HR इंटर्न इज फाइन। अगर आपको डिपार्टमेंट की क्लैरिटी नहीं है तो सिर्फ आपने लिखना है इंटर्न, और आगे हाइफन डाल के कंपनी का नाम मेकिस्तान। और लाहौर पाकिस्तान के बजाय आप अपनी जो मंथ्स हैं, जो आपने टाइम बताया हुआ है, आपका जो टाइम पीरियड है, वो उसको ऊपर ले आएगा, ठीक है? Okay. Design parts of chaff cutting machine, work on a project of chaff cutting machine to prevent inconvenience. अगर आपने कोई एक दो काम किए हो वहाँ पे, तो इंटर्न वाली जगह पे वो एक और अपना KPI मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? जो आप वहाँ Okay. काम करते थे। अच्छा, let's talk about your what's the first president of British Empire.
awarded merit-based scholarship to study HMRC and technology, awarded merit-based scholarship to study So Hasnain, if you are done with Ikra's review, then we can shift towards Nisam. या ठीक है, Sure. we are quickly done. ठीक है, या आप ऐसा करिएगा, सिर्फ इंडस्ट्रियल विजिट्स हटा दीजिएगा. वी डोंट नीड टू डू दैट. इंडस्ट्रियल विजिट्स उतने इम्पैक्ट नहीं है. वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग के बजाय की जगह पर ना आप अपने वो डिप्लोमा मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, या अदर क्वालिफिकेशंस में लिख दीजिएगा. ओके सर. अदर क्वालिफिकेशंस में बोल दीजिएगा और स्किल्स में आप अपनी स्किल्स जो है मेंशन कर दीजिएगा. आपकी स्किल्स पे ठीक है यहाँ पे, ठीक है, और रेफरेंसेस आप ये फिर करके मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको फिर कुछ चेंजेस वगैरह अगर करने हुई तो बता दूंगा. आई विल शेयर अ टेम्पलेट विद यू एज वेल. लेके आई विल शेयर. ठीक है इकरा, थैंक यू वेरी मच. ओके सर, थैंक यू सो मच. ठीक है. मीसम. It's Nisam's term now. Nisam की अब CV review होगी. Nisam, please आप अपना CV upload कर लो. If it's Kinza who has uploaded the CV, तो Kinza आप please अभी अपना remove करो. अभी Nisam की turn है. अच्छा, Shaya, can you please allow Nisam to start sharing his page? Yeah, I have allowed them. So, is it visible? Yeah, this is visible. Okay. हेलो मीसम, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Hello. Okay. ठीक है. So मीसम will start branding statement. अच्छा, आपका टेम्पलेट थोड़ा सा मुझे immediately टेम्पलेट दिखाते हो, like थोड़ा सा zoom out करो. I want to see the first image of your CV. Okay, sir. Is it fine? अच्छा, चलो let's just do it this way. अच्छा ठीक है. मिसम, आप क्या कर रहे हो? एजुकेशन आपकी है BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है. अच्छा, उसके लिए आपसे टेम्पलेट इज फाइन. मतलब we can work with this template, of course. अच्छा, do you अच्छा, I've seen वैसे people in the marketing business, they do like to mention all of they like to show their logos as well. I don't know why. मुझे नहीं लगता इसकी इतनी जरूरत होती है, but if you feel कि it's all right. But आप don't you think ये थोड़ा cluttered लग रहा है आपको यहाँ पर सबके logos डाल के? Sir, basically, I thought it will make some impression. ठीक है. If you like it, तो it's fine. But as a recruiter, I'll say कि थोड़ा सा cluttered लग रहा है, right? Okay. इसकी जगह what we can do is कि हम आपका जो skills वाला portion होगा जिसमें आप बताओगे कि आप
टेक्निकली कितने शांत हो, आपकी टेक्निकल स्किल्स कौन सी हैं, आपने डेफिनेटली अपना एड्रेस वगैरह, अपनी लोकेशन, अपना ईमेल एड्रेस या कोई नंबर या लिंक्डइन का एड्रेस लिखा होगा ऑफ कोर्स, तो हम उसको यहाँ पर लेंगे। आपकी 1 पेज सीवी है यस सर। रेज्यूमे, ओके ग्रेट। तो आपने एड्रेस वगैरह कहाँ लिखा है अपना फिर? सर एट द एंड। अच्छा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो चेंजेस जो आप कर रहे हैं। मेसम आपका सीवी स्टक हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसको डाउनलोड करके फिर ओपन कर लो। आई गेस अभी आपने ये डायरेक्ट ईमेल से डाउनलोडेड है। ओपन किया है। ओके। ओके तो नाउ ठीक है। अच्छा, आपने जो अपना एड्रेस वगैरह ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सारा लिखा है ना, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट्स जस्ट नॉट डू दैट। सो वी ओके हम इसको ऊपर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जहाँ पे आपके लोगोस है ना सारे, वी गोना रिमूव दोस लोगोस। हम आपके अट्रैक्शन के लिए वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है, कि ओके इसको कैसे एक मार्केटिंग वाली सीवी कैसे बनानी है, विल जैज इट अप बट नॉट लाइक दिस। सो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी ऊपर आ जाएगी लेफ्ट वाली साइड पे, और फिर वी कैन यू नो मेक वो जो एक थोड़ा सा डिजाइन करके हम आपकी जो स्किल्स वगैरह की स्ट्रेंथ है हम उसको मेंशन कर देंगे कि टेक्निकली आपकी स्किल क्या है, ठीक है। ओके आप यहाँ पे बस एक चीज ऐड कर लो कि ईमेल के साथ साथ अपना लिंक्डइन भी ऐड कर लेना। एंड जैसे मैंने ओके एकरा को कहा, आप भी अपना लिंक्डइन अपडेट कर लीजिएगा पहले, और फिर जो है वो उसको वहां पर ऊपर लेफ्ट साइड पर ले जाएगा। ओके, हम दोबारा ऊपर आते हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पे आते हैं। ओके, I'm a practical human being with a dynamic and resilient। अच्छा, अब इमीडिएटली आपका जो ब्रांडिंग स्टेटमेंट है ना, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है यार, मतलब मेरा ऑनेस्टली अभी भी पढ़ने का दिल नहीं करा। ओके जब मैं जब सीवी देखूंगा ना आपकी, तो मैं शायद स्टार्ट ही एजुकेशन से करूंगा फॉरन, कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इंटर्नशिप्स में आपने क्या क्या किया। सो मैं शायद आपका ब्रांडिंग स्टेटमेंट देखूंगी ना। So if you really want me to read your branding statement, I would ओके really suggest you to make it three lines यार। 3 lines बहुत होते हैं। Make it impactful, सिर्फ वो चीजें लिखो जो बाकी actually you mean it। ओके am I audible? क्या आपका ब्रांड क्या है, राइट? ब्रांडिंग स्टेटमेंट का ही मतलब है ना कि मीसम एज अ ब्रांड क्या है, राइट? यस सर। सो मीसम एज अ ब्रांड हमें 3 लाइनों में समराइज करना है, सर ठीक है? उन 3 लाइंस में आएगा क्या क्या, मतलब what should I write? What are the 3 factors that I must incorporate in मीसम, those आपको three मेरी आवाज आ lines? रही है ना? Yes sir. Am I audible? हेलो? Am I audible to everyone? Hello. Yeah, you are audible, but I Listen, we can't can hear listen. you. I guess Slang की voice में थोड़ा सा है। Yes. Okay. हेलो? Sir, your voice is continuously breaking. There are glitches in the internet. ओके, अब मेरी आवाज कैसी है? Better. ओके, अच्छा, आपको ब्रांडिंग स्टेटमेंट की क्लैरिटी होगी जो मैंने बात की अभी? Yes sir, I was asking that what should be written in those 3 lines? What are the अच्छा, impactful things that we must incorporate? ठीक है। अच्छा, आपने ना लिखना है सिर्फ अपना कि आपकी मार्केटिंग की कौन सी फील्ड है दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, ठीक है? यू विल स्टार्ट विद, यू कैन स्टार्ट विद, आप ऐसे करें कि अपनी 3 लाइंस लिखें कोई भी, तो आई विल इम्प्रूव इट जब आप मुझे अपना एडिटेबल वर्जन भेजें। बट स्टार्ट आपने ये Fine. करना है कि पहले आपने ये बताना कि व्हाट आर यू गुड एट, राइट? ठीक है, Okay. पहले आपने बताना है व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, एंड देन आपने बताना कि व्हाट कैन यू डू फॉर द कंपनी। आपके जो ब्रांडिंग स्टेटमेंट है उसमें 2 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि एक तो आपने बताना कि हाउ गुड आर यू, आपका पैशन क्या है, आप किस चीज में Okay. अच्छे हो। दूसरा,
आपने जो बंदा रिक्रूटर जिस कंपनी का है वो ये देखेगा कि मेरे लिए क्या कर सकता है, राइट, मेरी कंपनी के लिए क्या वैल्यू लेकर आ सकता है। तो आपने उस वैल्यू को भी मेंशन करना है। जैसे इकरा की एक लाइन अच्छी थी कि मैं मेरी रिसर्च के एक्सपीरियंस के थ्रू कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है, दैट इज एन ओके लाइन। हम इसको आइडिया अच्छा था वो, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इंग्लिश पे बेहतर कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, बट आइडिया वाज देयर, राइट। तो इस तरह का हमें आइडिया 3 लाइंस में चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपने सही किया है, एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में अपना लिखा है, दैट्स गुड। या एजुकेशन पार्ट इज फाइन, ठीक है, बट व्हाट विल डू इज कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर जो है वो So your voice is again breaking. Hello. Is it only me or everyone can feel that glitch? guys, can you hear me again? I don't know what's happening today. Yes, sir, you are audible now. Okay. अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि आप क्वालिफिकेशन हटा दीजिएगा, यहाँ से सिर्फ एजुकेशन लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, राइट। Okay. बाकी इट्स फाइन। आप ऐसा करें कि सिर्फ अपनी जो आपकी इयर्स ऑफ एजुकेशन है जो आपने मेंशन किया उसको थोड़ा सा आगे ले जाइएगा, थोड़ा सा Okay. गैप रख लीजिएगा, और मंथ्स भी मेंशन बेशक कर दीजिएगा, इट्स Okay. फाइन वैसे। इट्स योर कॉल, इतना जरूरी भी नहीं है मंथ मेंशन करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसी तरह ठीक है, आप ये करिएगा कि अपनी डेट्स वगैरह आगे ले जाएगा। Okay. इलेक्शन सेल, दुनिया न्यूज, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गैप रखें आप, ठीक है, लाइक इलेक्शन सेल आपने बता दिया, दुनिया न्यूज में आप काम कर रहे थे, ठीक है। एक तो आप इसको ना ले जाएं उसमें पॉइंटर्स में, जैसे आपने नीचे प्रोजेक्ट एंड रिसर्च में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ना, Okay. उसी तरह ही इलेक्शन सेल में जो आपने दुनिया न्यूज में काम किया उनको पॉइंटर्स में ले जाएं। वो एक रिक्रूटर के लिए इजीली रीडेबल होता है, वो इमीडिएटली पढ़ लेता है कि आपकी क्या क्या आपने काम किया, राइट। Fine, sir. एंड सेम गोज फॉर डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस में। अब उसमें करेगा क्या कि इलेक्शन सेल और डायरेक्टर रिसर्च के आगे जो आपने पॉइंट्स डाले हुए वो हटा दीजिएगा, उनको बेशक एक स्टार्ट ऑफ ए न्यू पैराग्राफ बना दीजिएगा, और आगे नीचे से आप अपने पॉइंट शुरू कर लीजिएगा एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी Okay. इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इन रिसर्च, राइट। अच्छा, प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च को एक तो नीचे ले जाएगा, और आप उसमें से देख लीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं उसमें मेंशन करना। आई थिंक 4 ज्यादा हैं, लेट्स मेक इट 2। आई थिंक Okay. 2 इज फाइन। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, इसकी जगह हम ऐसा कर लेते हैं, हम सिर्फ स्किल्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। Okay. स्किल्स लिखते हैं, और स्किल्स के बारे में हम आप अच्छा यहाँ पे अपना थोड़ा सा और टेक्निकल स्किल भी बताएं। सोशल मीडिया हैंडलिंग इज फाइन, बट लेट्स जस्ट एक्सप्लेन सोशल मीडिया हैंडलिंग। अगर आपने किसी सोशल मीडिया के आपने पेजेस पे काम किया हुआ है, राइट, इंस्टाग्राम हैंडल किया हुआ है, यूट्यूब हैंडल किया हुआ है, लिंक्डइन हैंडल किया हुआ है, ट्विटर हैंडल किया हुआ है, आप उसका भी थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल के बता सकते हैं कि मैंने इन पे काम किया हुआ है एक्चुअली। सोशल मीडिया हैंडलिंग इज नॉट जस्ट गुड इनफ, ठीक है। और एमएस Fine. ऑफिस को भी लिस्ट, या मेरी आवाज तो नहीं बीच में कट रही? No, sir. अपनी कट रही. ओके, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में भी हम सिर्फ विल ओनली टॉक अबाउट योर एक्सेल और पावर पॉइंट आपका, और 2-3 चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वी वोंट राइट दैट। और इसको कैप्स में क्यों लिखा आपने? इसको कैप्स में नहीं लिखा है, ऑफिस Okay. को पूरे, ठीक है। सो आप बता दीजिएगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपका एक्सेल वगैरह अच्छा है, यूर अ मल्टीटास्कर, दैट्स गुड, गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। अच्छा, अकम्पलिशमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, Yeah. मेक इट 4, बस काफी है 4 से 5 यार। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है सिर्फ वो लिखनी है आपने, ठीक है। Okay, sir. To be well recognized, to be cognizant of current affairs, ठीक है, makes sense। ठीक है यार, आई थिंक योर सीवी इज नॉट बैड, इट्स एक्चुअली फाइन।
सिर्फ 2-3 चीजें जो थोड़ी बहुत चेंज करनी है वो कर लो, इट बी फाइन। ठीक है, आप लिखते रहो क्या क्या चेंजेस करना है। Yes, sir. I have noted them down. ठीक है, आप भी चेंज करके मुझे भिजवा देना, एंड देन आई यू नो उसको बेहतर करना पड़ा तो we'll do that, right? Fine. Fine. Thank you so Thank you, much. Misham. Thank you so much for the Who's guidance. next? Yeah, who's next? Assalamu alaikum, sir. I am Rehan Ahmed. I hope I am audible. Hello, hi Rehan. Assalamu alaikum, sir. I hope you can hear me. Hello, Rehan, can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Can you hear me? Hello, assalamu alaikum. Yeah, you're back. Walaikum salam, sir. रेहान बात कर रहे हैं। जी sir. I hope I am audible now. जी, you are. Okay, रेहान, पहला immediately देखते हैं, it's a very nice CV, looks very good, to be honest. Okay, आपका header is perfectly fine, ठीक है, राइट जगह पे नेम है, राइट जगह पे एड्रेस है, लिंक्डइन है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, परफेक्ट, आपने यूनिवर्सिटी अपनी लिख दी है, ठीक है, आप उसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, यू नो, डिग्री और ठीक है, ऐसे ठीक है। आप ऐसे करिएगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, यूनिटी, उसको नीचे लाएगा और अपनी डिग्री को ऊपर कर लीजिएगा, राइट, बाकी इट्स फाइन। डीन्स मेरिट लिस्ट भी मेंशन कर दिया आपने, चलें, दैट्स गुड। बीकन हाउस से आपने ग्रेजुएट किया, अब ग्रेजुएशन डेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इट्स आई थिंक अंडरस्टैंडेबल कि वो जब आपने अगस्त 2017 लिखा है तो आपने तब ग्रेजुएट किया है, सो इफ इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू मेंशन योर कि आपने वहां पर लिखा हुआ ना हो ग्रेजुएशन डेट, सिर्फ मंथ और ईयर बता दिया आपने, दैट्स फाइन, राइट? Sure, sir. ठीक है, अच्छा, आप स्कूल का भी बता दिया आपने, ठीक है, स्कूल डाउन करें। वर्क एक्सपीरियंस कंधारा मिशन इंजीनियरिंग, ठीक है जी। Observed and worked in different departments of production, such as warehouse assembly, collaboration with senior management, business recommendation. Okay, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। पाकिस्तान रेलवे observed and worked in a few sections. Leadership experience. Okay, it's new. I think it's fine, yeah. It's actually a really good scene. अब आपने सिर्फ sir, ये काम करना है, जी बोलिए। The question I had was कि जो branding statement है, so why are we including that on our CV? क्योंकि हम साथ ही cover letter देते हैं. Shouldn't we mention that on the cover letter? अगर तो वो कवर लेटर आपसे मांग रहे हैं ना, फिर तो ब्रांडिंग स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं बनती, you're absolutely right. अगर आप सिर्फ अपना रेज्यूमे ही भेज रहे हैं वन पेजर, तो उसमें इफ यू वांट टू राइट, देखो पर्सनली आई डोंट डू दैट, आई डोंट राइट ऑब्जेक्टिव्स, आई डोंट राइट ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इफ समवन वांट्स टू राइट इट, इसमें देयर इज नो हार्म टू इट, ठीक है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एटलीस्ट नहीं आएगा। सो अगर किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हटा दें, राइट? अगर तो कोई चीज है जो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो यस वी विल डेफिनेटली रिमूव दैट। अगर तो आप कवर लेटर आपने अपना बनाया हुआ है, देन देयर इज नो नीड फॉर द objective statement or branding statement or whatever. You're absolutely right. And second, there is another question. So should I include a paragraph for projects, the projects I've done for the past 4 years or my final year project, or is that enough? There's no need for that. I don't think so. मेरा नहीं ख्याल कि प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। अगर तो कोई एक्चुअल में बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था कोई, which you feel कि यार ये तो बताना चाहिए मुझे, I did a lot of work there, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस है ना, हम उसकी जगह आपका उसमें हम अपना टाइटल चेंज कर लेंगे, उसमें फिर लीडरशिप एक्सपीरियंस हटा देंगे, फिर हम लिख देंगे अचीवमेंट्स या स्लैश प्रोजेक्ट्स, राइट? और उसमें फिर हम 2 लाइनें डाल देंगे अचीवमेंट की, जो आप हाउस कैप्टन थे उसकी, और हम 2 लाइनें आपकी डाल देंगे प्रोजेक्ट्स जो आपने हैंडल किए। मेक सेंस? Okay, sir. Thank you, sir. आप ये अगर चेंजेस करते हो तो लेट मी नो, मुझे बता देना, आई शेयर इट विद मी एंड I'll share it with Ma'am Saira and she can share it with you. Great, do that. Thank you, Rehan, you did a good job. Welcome, sir. Thank you. Yeah, next is Kinza.
Can I quickly open your CV so that we can move to the next one? Okay, ma'am. Ma'am, can you see the CV? Yeah, जी we can share. You can see the screen. आप किंजल इसको ऊपर कर लीजिएगा पूरा. Okay. Yes. Doing industrial. ठीक है, so आपने नाम के साथ अपना टाइटल भी लिख दिया है, which is good in these days. I think the new thing जो कि लोग appreciate कर रहे हैं, that's a title. Industrial engineer वाला, ठीक है, makes sense. Address आ गया, phone number आ गया, email address आ गया, LinkedIn भी आ गया, ठीक है. Career goals. अच्छा, Kinza, like I was talking earlier, आपका जो है, आपका कोई कवर लेटर वगैरह तो नहीं है? That's it, right? No, वही sir. आपका CV है? No, ठीक है, sir. makes sense. That's As an industrial engineer, I want to emphasize continuous improvement, emphasize on, shall I emphasize continuous improvement, resource utilization, workforce optimization, boost ROI, enlarge customer base, increase customer satisfaction, and achieve the highest level of performance through finest management skills in order to attain the success of a solid organization. अच्छा, तो यहाँ पर आपने actionable words को ज़्यादा ही डाल दिए हैं. Resource utilization, workforce optimization, boosting ROI, enlarge customer base, increase customer satisfaction. These are a lot of goals, to be honest. चलें, but it's fine. But I think we can make it better. Let's just cut down to few. 2 से 3 कर लें, ये बहुत ज़्यादा है, right? okay, sir. ठीक है. और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपकी जो एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी 1-2 लाइनें लिख दीजिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो वो किस किस्म की कंपनी के साथ काम करने की है. थोड़ा सा वी नीड टू मेंशन दैट एज वेल, राइट? क्योंकि शुरू में हम ये भी बताएंगे उन्हें कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर जो जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको आप इंटरव्यू दे रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे पूरा कर सकते हो, राइट? Okay, sir. तो बस एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा एंड यू नो कट डाउन टू 3 लाइंस. जब आप वो ऑब्वियसली एक्शनेबल वर्ड्स निकालोगे, 2-3 कुछ बूस्टिंग आरओआई फॉर इंस्टेंस, तो वो अगर निकाल दोगे तो ऑफ कोर्स आपका एक लाइन ऊपर आ जाएगा. Okay, academic qualification. Okay, nobody is doing this anymore, Kinza. Nobody is making boxes in their CVs, boxes बना के इतना clarity. और education कभी इससे नहीं शुरू करो, पहले metric नहीं लिखो. Always start with your latest education, ठीक है? So आप start with your bachelor's. अगर आपने पिछली 2 CVs देखी हो, उसमें education का जो criteria था बताने का, I think that was very good. अगर if you I would recommend कि don't go with the boxes, ठीक है? ये हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. सीरियल नंबर, डिग्री, काफी ऑफिशियल सा लगता है. मतलब इतना भी ज्यादा नहीं हम कर सकते. सो आई वुड रेकमेंड के ना करो. यूजुअली मॉडर्न रिक्रूटर्स जो है वो ये नहीं देख रहे होते हैं, या एकदम अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बड़ा चाइल्डिश सा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट यूज्ड टू हैपन बैक इन लाइक अर्ली 2000 या 2005, 6, 7 में बड़ा अच्छा लगता था, बट नॉट एनी मोर. सो आप बॉक्सेस बेशक हटा दीजिएगा, और अपनी एजुकेशन जब आप बताएंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सो यू कैन स्टार्ट विद योर लेटेस्ट एजुकेशन एंड देन आप ट्रिकल डाउन कर लें अपना इंटरमीडिएट और फिर मेट्रिकुलेशन अगर हमें बताना तो वो बता दें, राइट? और अपना जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, दैट्स वो बता दिया, दैट्स फाइन इनफ. आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? Yes, sir. I can hear you. चलें, ठीक है. अच्छा, आपको समझ आ गया कि एजुकेशन आपने कैसे थोड़ा सा इसको चेंज करना है? Yes, sir. Noted. ठीक है. आप स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे. पर्सनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, ये आपकी बेसिकली स्किल्स हैं, आपकी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, प्रोजेक्ट. अच्छा, आपके कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस वगैरह है?
No, sir, I don't have any experience. ठीक है, चलो तो ठीक है, मेक सेंस. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, आप पर्सनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की बजाय लिख दीजिएगा स्किल्स अपने, ठीक है. Okay, sir. वैसे तो आप जो दोनों जो है ना आपके पर्सनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज वाला आपका सेगमेंट और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला सेगमेंट बेसिकली बता वो एक ही चीज रहा है, राइट, कि आपकी स्किल्स क्या हैं, टेक्निकल स्किल्स क्या हैं आपकी. सो अगर हम वी कुड राइट योर स्किल्स इन जस्ट वन, तो दैट विल बी बेटर, राइट. Yes. सुपरविजन कॉम्पिटेंसीज में नहीं आना चाहिए, लेट्स जस्ट रिमूव दैट. आपने टीम वर्क लिख दिया, दैट्स वेरी गुड. प्रेजेंटेशन स्किल्स लिख दिया, दैट्स गुड. इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन लिख दिया आपने, दैट इज आल्सो गुड. टेक्निकल के आपने काफी लिख दिए. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग अलग, हम लेट्स जस्ट मेक अ वन लाइन एक्सेल कॉमा वर्ड डाल दीजिएगा, दैट्स गुड इनफ. बाकी सॉफ्टवेयर आई एम नॉट अवेयर ऑफ सॉलिड वर्क्स, प्राइमरी के बारे में भी आई हैव नो आइडिया. बट देखिए बाकी इफ इट्स गुड इन योर फील्ड, आपकी फील्ड्स के लिए अच्छे हैं, सो प्लीज डू मेंशन दैट एंड लेट्स मेक इट वन सेक्शन, ठीक है. एक ही सेक्शन बना दीजिएगा इन दोनों का. Okay, sir. आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद, अब प्रोजेक्ट के अगर, क्योंकि जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो वी कैन टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट, राइट. तो प्रोजेक्ट के बारे में आप एक दो से तीन लाइंस ले सकती हैं, राइट. आप बता सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, व्हाट वाज योर इनपुट इन दैट. पॉइंटर्स की सूरत में आप वो बता सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या था. अभी आपने लिखा है सिर्फ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर बाय इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. अब आप हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम ऊपर भी थोड़ी सी जगह कम करेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह, हमारे पास 2 से 3 लाइंस आ जाएंगी फाइनली प्रोजेक्ट. तो हम वी कैन हम रिक्रूटर को बेसिकली ये बताना पसंद करेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट किया वो हमने कैसे किया था, और उसकी जिस तरह आपने वो प्रोजेक्ट किया था उसकी बेसिस पे मुझे जो है वो मौका दिया जाए हायर करने का, बिकॉज हमारे पास स्किल्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस वक्त बताने का एम्प्लॉयर को कि मुझे काम आता है या मैं काम कर सकती हूँ, राइट. तो हम अपनी जो चीजें हमारे पास है हम इनको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएंगे, इनको सेल करेंगे, ठीक है. तो हम Yes, वी sir. विल सेल योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वी विल सेल योर competencies, and then we'll talk about the achievements. Dean's Merit Award, nice. Rector's Merit Award, very good. ठीक है. हम Sir, scroll down करते हैं. जी so जी what's बोलिए. the appropriate font size of CV? What's the appropriate font size we should use there? This is fine. There's no appropriate or unappropriate. I mean, there is unappropriate font sizes, of course, but आपके वाला is fine. आपका जो लिखने वाला है ना, that should be 12, not more than 12. और आप headings पे अपना 13 पे जा सकते हो, या लिखने वाला 11 कर लो और headings पे 13 पे चले जाओ. बट ये है कि दिस इज फाइन. आपने जो भी फॉन्ट वगैरह रखा हुआ है मुझे ठीक लग रहा है वो, सवाई माइनस द टेबल जो आपने ऊपर डाला है. बाकी आई थिंक इट्स फाइन. हॉबीज इन, और कोई सवाल आपका? हॉबीज इंटरेस्ट ठीक है, ट्रैवलिंग, राइटिंग, म्यूजिक, दैट्स फाइन, गुड. एनी क्वेश्चंस? No, sir. कोई और क्लैरिटी लेनी है आपने? कोई क्वेश्चन हो कुछ और? No, sir. I will improve my CV and send you at your email address. So, ठीक है. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट. गुड लक. thank you so much. Thank you, Kanva. Memuna, please upload your CV. Hi, is my CV or is my CV? No, it's not. Is it now? I have. Nope. I guess Memuna, you're online from your phone, so maybe ठीक है, you're इट्स ओके. facing some. हाँ, हम कर मैमूना, लो. मैमूना मेरे पास आपकी सीवी है, तो मैं देख लेता हूँ.
यहाँ से मैं आपको, Okay. क्योंकि आपके पास आपकी सीवी खुली होगी, मेरे पास भी जी खुली है, जी. तो वी कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. अच्छा, आपने Yes. पिक्चर लगाई हुई है, योर कॉल इफ यू वांट टू मेंशन अपनी पिक्चर, अगर आप लगाना चाहते हो दैट्स योर कॉल. आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू दैट. Okay. या पिक्चर्स अनलेस के वो हाईली प्रोफेशनल पिक्चर हो. अब जैसे आपकी पिक्चर्स में पीछे मुझे कोई फायर वगैरह नजर आ रही है, राइट, शोले वगैरह Yes and sir. everything. That's not a professional picture, right? So even if you Okay. want to go ahead with your picture, so बेहतर है कि यहाँ तो कोई बहुत ही प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, या Okay. बेहतर ये है कि ना ही लगाएं पिक्चर. या that ठीक also है. works. जी. अच्छा, so आपने नाम लिख दिया, highly motivated enthusiast content writer लिख दिया आपने. अच्छा, अब आपकी जो डिग्री है और जो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रहा है. आपकी जो सिर्फ आखिरी जो लाइन वर्ड है ना, कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स, टू सम एक्सटेंट वो बीए साइकोलॉजी में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, बट बाकी जो आपकी लाइन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही. सो वी कैन, आप पहले देख लो कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपकी मोटिवेशन क्या है. इफ Sir, दैट्स योर yeah, that मोटिवेशन देन इट्स फाइन. ठीक है, I फिर don't ठीक, want to work in the like साइकोलॉजी in the फील्ड. field of my psychology. Yeah, that's not something ओके, I want to pursue later. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज हमें अपने रास्ते बदलने की जरूरत है. अगर बिकॉज इस डिग्री के साथ आप जो पसंद वाली फील्ड है उसमें जॉब मिलना विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट. सो व्हाट वी विल डू कि यहाँ तो हम इंटर्नशिप्स या काम इंटर्नशिप्स करें उन जगहों में, उन इदारों में जो कि आपको इस तरह का काम दे, राइट. या हम अपनी फॉरेन डिग्री मास्टर्स के लिए अप्लाई करें और हम अपना मास्टर्स जो है वो अपनी पसंद की फील्ड में करें इमीडिएटली. ठीक है. उसके बाद सेकंड थिंग, आपकी पेज सीवी 2 पेजेस पे है, बहुत ज्यादा आपने स्पेस ली हुई है, वी डोंट नीड टू डू दैट. पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल एंड में डाली हुई है. ब्रिंग ऑल ऑफ दैट ऊपर, सबसे ऊपर. ठीक है. मेमुना नासिर के नीचे आपकी जो 2 लाइंस आपने यहाँ पे लिखी हुई है, हाईली मोटिवेटेड वाली, यहाँ पे आइडियली आपकी 2 लाइंस में डेट ऑफ बर्थ हटा दीजिएगा आपने. ठीक है. आपका होम एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना एड्रेस लिखें, अपना फोन नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और अपना लिंक्डइन भी लिखेगा. ठीक है. एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन पे आए तो आप अगेन आपने पहले अपना ओए लेवल्स मेंशन किया हुआ है और बाद में अपनी ग्रेजुएशन किया है. वी डोंट नीड टू डू दैट. हम पहले आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, अपनी आपकी डिग्री के बारे में बताएंगे, एंड देन हम आपके ओए लेवल्स के बारे में देख लेंगे. ठीक है. सो वी विल रिवर्स द ऑर्डर. Do I need to write like O and A levels separately or like just the way I've written it? This is fine because आपने एक इदारे से नहीं किया, आपने नहीं, दो I different did my schools O से किया. levels from Rosens. Yeah, I did my O levels from Rosens and then A levels from LGS. Honestly, it's fine. मेरा नहीं ख्याल आपको सेपरेट लिखने की. O levels is fine, perfectly fine. Okay. अच्छा, हमें ना we need to redesign your template. This is not working out, honestly. Okay. Yeah. What I'm gonna do, I'm gonna write it here. I'm gonna share some good templates with you relevant to your field. ठीक है. हम उस पर फिर काम करेंगे. This is not working at all. Yeah. Yeah, sure. We need to work a lot on your sheet. ठीक है. So we will handle that later. ठीक है. मैंने यहाँ पे लिख लिया. I'll get in touch with you. Okay, great. ठीक है. Okay. Thank you. All right. So, thank you, friend. Yeah, stop there. Okay, friend. Thank you so very much, and I hope it was fruitful session for the students, and they really learned a lot of new things about how to make sure that their CV packs a punch. Yes. My humble request to you that because we have a follow-up session tomorrow from 10 to 12. So, अगर आप इनको कोई task assign करना चाहें pertaining to that, if they need to work on their first draft of their 30-second elevator pitch, उसके बारे में, Yes, absolutely. ताकि वो कल आपको बिल्कुल, pitch कर सकें, and tomorrow we will be talking more about the interviewing skills students, they can ask so queries. very good, Shaira. That's a very good point. Actually, this is where I was actually going to ask you to do that. बिल्कुल ठीक है. Guys, जो Shaira कह रही है, she's absolutely right. You guys need to work on your elevator pitch. That is your introduction. Simply put, होगा ये कि मैं आप 6 का मॉक इंटरव्यू लूंगा. ठीक है. So we will begin as if आप actual में इंटरव्यू के लिए आए हो. ठीक है.
So आपका mock interview इस तरह होगा, I'll ask a question, introduce yourself, और आपको अपनी elevator pitch करनी है 30 seconds में or 1 minute, not more than that. And then once you're done, फिर मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि what needs to be improved. और meanwhile आप लोग ये करें कि आप लोग जिसको मैंने CV की जो changes बताई हैं वो जो है मुझे changes करके भिजवा दें, और जिनको templates मैंने देनी है वो मैं आज जो है वो templates भिजवा दूंगा, ठीक है? तो वो अपनी चेंजेस करके वो मुझे भेज दीजिएगा। तो अगर सीवी पे काम करना हुआ तो मैं वीकेंड्स पे कर दूंगा आप लोगों के साथ, और कल जो है उस सेशन पे हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, कैसे इंटरव्यू हमने अपना सॉलिड देना है, और भी जो आपके क्वेरीज होंगे ना, सवाल होंगे। वी विल आल्सो टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। So we need to learn a lot about the organization as well. I will ask random questions about the organization, DS Global के बारे में, and I hope कि आपको वो answers पता हो. So it's gonna be like a mock interview आप लोगों के लिए, right? So good luck guys, and I'll see you tomorrow. Just a quick word. इनको already हाँ? हमने task assign किया हुआ that they have to do a complete appraisal on DS Global, and Okay. they will be putting up like not random presentations, rather specific presentations on DS Global. Secondly, इसमें से जो 2 students हैं, specifically Rehan and Ikra, they will also be pitching their startups for funding to the DS Global. So उनका वो वाला angle भी है, और so that's the background I thought that you should know. और इंशाल्लाह जो है वो tomorrow we will catch up. और मुझे एक और बात ये भी बता दें कि आपसे ये बच्चे LinkedIn पर भी correspond कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर। आप मुझे इनको ईमेल भी दे सकते हैं, आप मैंने इनको ईमेल को आपका भी दे बता दिया, दूं। और यहाँ पे मैं आपका जो LinkedIn प्रोफाइल है वो भी मैं जी। आपका शेयर कर रही हूँ उनके साथ। Absolutely, yeah, absolutely. Thank you so much, Asnan. Thank you, everybody. Thank you so much guys. Thank you Saira. Thank you Thank you guys. so much, sir. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Thank you so much for Good your luck. time, Allah sir. Hafiz. Thank you. Appreciate it guys. Thank you. Allah Hafiz.